السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناول نیم بنی میں آئی ہوئی لڑکی، قسط نمبر 4۔ ایمن چارپائی پر لیٹ گئی اور رونے لگی۔ کیا یہی ہے ان کی غیرت کہ اپنے دوستوں سے میرے بارے میں ایسی شرط لگائیں، میرے کردار کو اپنے دوستوں کے ساتھ ڈسکس کریں؟ آخر یہ کیسی غیرت ہے؟ کیا میری ذات اتنی بے مول ہے کہ اب باہر کے لوگ میرا کردار جج کرنے کے لیے شرط رکھیں گے کہ ایسے ہوتے ہیں شوہر؟ ایمن پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ادھر مراد حیرت میں تھا کہ کیا ہو گیا جو ایمن شامیر کے کمرے سے ایسی بھاگتی ہوئی دوسرے کمرے میں جا رہی تھی، اور اس نے مراد پر غصہ کیا۔ مراد سوچتا ہوا اپنے کمرے میں آ گیا۔ ادھر شامیر پچھتا رہا تھا ایسی بات بول کر۔ اگر وہ شرط والی بات نہ بولتا تو ایمن آج نہ جاتی۔ وہ ہمیشہ ہی اس کی توجہ کی منتظر رہتی تھی۔ اب تینوں کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ آج کی صبح کافی عجیب تھی۔ شامیر بھی اداس دکھائی دیتا تھا۔ ایمن تو ہمیشہ ہی اداس رہتی تھی، لیکن آج معمول سے زیادہ مرجھائی ہوئی تھی۔ اس نے حسب معمول چائے پینے کے بعد جھاڑو اٹھایا۔ مراد بھی چائے پینے کے لیے آ کر بیٹھ گئے۔ شامیر اور مراد دونوں ساتھ چارپائی اور بیٹھے ہوئے تھے۔ سجدہ سکینہ دور بیٹھی محو گفتگو تھی۔ عافیہ اور صوفیہ دونوں اندر کمروں میں گھسی ہوئی تھی۔ شامیر کسی سوچ میں گم تھا اور مراد اسے دیکھ رہا تھا۔ تمہارے دماغ میں کیا چلتا رہتا ہے ہر وقت؟ مراد نے کہا تو شامیر نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کچھ نہیں، شامیر بولا۔ آج ڈیرے پر نہیں گیا کیا؟ مراد نے طنز کیا۔ دل نہیں کر رہا وہاں جانے کا، شامیر نے ایمن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ مراد کی نظروں نے شامیر کی نظروں کا تعاقب کیا۔ ایمن جھاڑو دینے کے بعد اب روٹیاں پکانے کے لیے تیاری کر رہی تھی۔ وہ لکڑیاں توڑنے لگی۔ مراد کو لگا وہ لکڑیوں سے پہلے خود ٹوٹ جائے گی۔ پھر مراد چھت پر آ گیا۔ ابھی تک بہار کا موسم تھا، نہ گرمی نہ سردی، ہلکی سی گرمی ہو جایا کرتی تھی دوپہر میں، پھر راتیں ٹھنڈی۔ شامیر ایمن کے پاس آیا۔ بنی میں آئی ہو، میرے بھائی کے قاتل کی بہن ہو، تم پر یہ بیویوں والے نخرے اچھے نہیں لگتے۔ کل بلایا تھا نہیں آئی، آج نہیں آئی تو میری طرف سے فارغ ہو پھر۔ شامیر اسے دھمکی دیتا ہوا باہر نکل گیا۔ ایمن کی ہمت جواب دے گئی۔ اس میں اب کوئی کام کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ کام ادھورا چھوڑ کر اندر آ کر چارپائی پر لیٹ گئی۔ مہارانی، روٹیاں کیا تمہاری ماں آ کر پکائے گی؟ سائجہ نے دروازے کی چوکھٹ پر کھڑے ہو کر کہا۔ میری طبیعت صحیح نہیں ہے، ورنہ میں کب نہیں پکاتی، ایمن نے بے بسی سے کہا۔ اب نئی فلم لگائی ہے طبیعت خراب کی؟ کل سارا دن آرام کیا ہے، اب اٹھو، میری بیٹیاں نوکر نہیں ہیں تمہارے باپ کی، سائجہ بولی۔ مراد آوازیں سن کر نیچے آیا۔ کیا ہوا چاچی؟ اس نے پوچھا۔ مہارانی کی طبیعت خراب ہے، اب روز یہ بہانہ کرے گی، سائجہ غصے سے بولی۔ ہاں تو ان کو آرام کرنے دیں، انسان ہے یہ بھی، مراد نے ایمن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ مراد کی آواز سن کر یہ سب بہانے ہیں کام نہ کرنے کے، سائجہ نے کہا۔ صفیہ، عافیہ، مراد نے آواز لگائی تو وہ دونوں کسی جن کی طرح برآمد ہوئیں اپنے کمرے سے۔ جی بھائی، عافیہ نے کہا۔ جاؤ کام کرو، ان کی طبیعت صحیح نہیں ہے، مراد نے کہا۔ وہ دونوں بنا بحث کیے کام پر لگ گئیں۔ کوئی اور کہتا تو غصہ کرتیں، لیکن مراد پر انہیں غصہ نہیں آتا تھا۔ صفیہ روٹیاں پکانے لگی اور عافیہ لسی بنانے لگی۔ دیکھ رہا ہوں بہت کام چور ہو گئی ہو تم دونوں، مراد نے چارپائی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ بھائی، آپ کے کام کے لیے ہم ہر وقت حاضر ہیں، صفیہ نے کہا۔ ویسے بھائی، آپ کو جب شہر میں نوکری ملے گی نا، تو وہاں جب گھر ملے گا نا، تو ہم بھی وہاں آئیں گے، آپ کے ساتھ رہیں گے۔ عافیہ اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اس کی ہاتھ میں لسی تھی اور اب وہ پراٹھے پر مراد کو مکھن ڈال کر دے رہی تھی۔ عافیہ، کیا بھائی کو بس لسی ہی دو گی؟ کچھ پکا کر بھی دو، اندھیا آلو شاید، صفیہ نے روٹی ڈالتے ہوئے کہا۔ بھائی بتائیں ساتھ کیا لیں گے؟ عافیہ نے پوچھا۔ بس صحیح ہے، یہی کھا لوں گا، مراد نے کھانا شروع کیا۔ بھائی، میرا موبائل خراب ہو گیا ہے، مجھے نیا لا دیں، عافیہ نے کہا۔ کل آ جائے گا تمہارا نیا موبائل، خوش؟ مراد نے کہا تو عافیہ نے خوشی سے بچوں کی طرح سر ہلایا۔ بھائی مجھے بھی، صفیہ ناراضگی سے بولی۔ اچھا مراد تمہارا بھی آ جائے گا، مراد نے کہا۔ لو جی، ادھر بات نکلی نہیں، ادھر پوری کر دی، مراد نے صادق احمد شامیر کے والد نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ ابا، آپ کا بیٹا تو ہمارا خیال رکھتا ہی نہیں، اگر مراد بھائی نہ ہوتے تو ہم دونوں بہنوں کو کوئی پانی تک نہ پوچھتا یہاں، عافیہ نے کہا۔ شامیر کو کچھ
मत कहो, एक बेटा जान से गया है मेरा, और शामिर के बारे में कुछ ना कहो, मेरी जान है इसमें। सादिक अहमद ने बैठते हुए कहा। हाँ, लेकिन हमें तो मुराद भाई प्यारे हैं। सफ़िया ने जताया। अच्छा, खाना दो, मुझे जल्दी काम से जाना है। सादिक अहमद मैं रुखे अंदाज में कहा। मुराद जानता था वो शामिर की बुराई नहीं सुन सकते थे, और मुराद को कोई शामिर पर फोके दे उनसे ये बर्दाश्त नहीं होता था। आफिया भाभी को खाना दे आओ, उनकी सेहत सही नहीं है, मुराद ने कहा। आफिया इसके लिए खाना लेके अंदर गई। मुराद भाई का हुक्म नहीं डालती, वरना तुम्हें देखने को भी दिल नहीं करता मेरे भाई के कातिल की बहन। आफिया खाना इसके सामने पटक कर चली गई। अहमद को रात वाली बात याद आई। मुझे माजरत करनी चाहिए उनसे, कल रात के लिए मैंने शामिर का गुस्सा उन पर निकाला। वो तो अच्छे इंसान हैं, सबका ख्याल रखते हैं, मेरा भी, अहमद ने कहकर खाना शुरू किया। रात जब हो का आलम हुआ तो शामिर ने अहमद के कमरे का दरवाज़ा बजाया। अहमद समझ गई कि शामिर इसे लेने आया है। अब इनकार का मतलब था बेद खाली। वो बारीक कदमों के साथ उठी और दरवाजे की कुंडी खोली। सामने शामिर खड़ा था। शराफत से कमरे में आओ। शामिर हुक्म सादर करता हुआ अपने कमरे में जा चुका था। अहमद सोचती रह गई। शामिर इसकी नज़रों में गिर चुका था। इसका दिल ही नहीं चाह रहा था जाने को, फिर भी वो इसके कमरे में आई। शामिर ने इसे देखा और इसके करीब आया। इसके चेहरे को तकने लगा। किस बात का गुरूर है तुम्हें? वो सीने पर हाथ बांध कर बोला। अहमद ने सर उठाकर इसे देखा। ऐसे मत देखो मुझे, मेरे लिए लड़कियों की कमी नहीं है, मगर तुम मेरे निकाह में हो और अपना हक लेना शामिर अच्छे तरीके से जानता है, शामिर ने कहकर दरवाज़ा बंद किया। क्या तुमने इससे माफ़ी मांगी? बस यही मर्दानगी थी तुम्हारी। एक वनी में आई हुई लड़की के आगे झुक गया। कासिम ने गुस्से से कहा। हाँ, तो गलती हुई थी मुझसे, माफ़ी ली। शामिर ने नज़रें चुरा कर कहा। वाह सही वाह, तू हमारा दोस्त कहलाने की काबिल नहीं है। हमद बोला। लेकिन शामिर ने कुछ कहना चाहा, लेकिन तो एक औरत के हाथों आलू बन गया। अब जाकर पैर दो इसके, हमारे पास क्या लेने आया है, बुज़दिल कहीं का। वज़ीर ने कहा। शामिर को गुस्सा आ गया। क्या तुम लोग अपनी बीवियों से माफ़ी नहीं मांगते? शामिर बोला। हमारी बीवियों की बराबरी अपनी बीवी से ना कर, हमारी बीवियाँ ख़ानदानी हैं, वनी में नहीं आई, कत्ल की बहन नहीं है। कासिम ने कहा। हाँ, तेरी बीवी तो खून बहा की ओस आई है। मेरे साथ ऐसा होता तो अपनी गर्दन कटा लेता, लेकिन अपनी बहन नहीं देता, अपनी जान बचाने के लिए, हामिद ने कहा। वो सब इसे इश्तियाल दिला रहे थे। शामिर वहाँ से उठकर घर आ गया। अमन बरामदे में बैठी सोचों में गुम थी। आया तो वो गुस्से से था, लेकिन अमन का चेहरा देखकर नरम पड़ गया। कमरे में आओ, शामिर ने कहा तो वो इसके पीछे आई। बैठो, इसने कहा। अमन बैठ गई। मोबाइल चाहिए? शामिर ने कहा। अमन ने नफ़ी में सर हिलाया। मैंने तोड़ा था ना, अब मैं ही ला के दूँगा। शामिर ने इसे अपने हिसार में लेते हुए कहा। मुझे नहीं चाहिए। वो बोली। अब छोड़ भी दो नाराज़गी। शामिर ने इसके हाथों को थामते हुए कहा। मैं नाराज़ नहीं हूँ। वो बोली। तुम मुझे अच्छी लगती हो, तुम बहुत हसीन हो। शामिर ने मोहब्बत भरी निगाह से देखते हुए कहा। अमन कुछ ना बोली। कल नया मोबाइल ले आऊँगा, वो बोला। अमन चुप रही। और कुछ चाहिए? शामिर ने पूछा। नहीं। वो बोली। कपड़े? शामिर ने कहा। नहीं हैं मेरे पास। अमन ने कहा। मुझसे मोहब्बत करती हो? शामिर ने अचानक सवाल किया। वो इसकी आंखों में देख। मोहब्बत? अमन सोच में पड़ गई। इसे याद आया वो मार जो इसने खाई पिछले 2 माह में, वो इल्ज़ाम जो इस पर लगा, वो दिल आज़ारी जो इसकी हुई। इतना सब कुछ हो जाने के बाद मोहब्बत क्या सोच रही हो इतना? शामिर ने इसे ख्यालों में गुम देखकर तो कहा। मोहब्बत का जवाब देने के लिए इतना सोचना पड़ रहा है तुम्हें? और फिर बोला। कैसे होती है मोहब्बत? किससे की जाती है मोहब्बत? वो जो मोहब्बत के लायक हो, वो जो आपको बाहर रुसवा ना करे, वो जो आपका ख्याल रखे, इसी से होती है मोहब्बत। अमन सोच रही थी, लेकिन कहा नहीं। शामिर इसके जवाब को मुंतज़िर था। अमन ने इस बात में सर हिलाया। वो जानती थी कि कुछ भी कहने से फिर से हंगामा हो सकता है। शामिर खुश हो गया। आफिया, सफ़िया कहाँ हो दोनों? तुम्हारे मोबाइल आ गए हैं। शाम को मुराद शहर से लौटा तो इन दोनों के लिए मोबाइल लेके आया। दोनों खुशी से बागी चली आई और मोबाइल मुराद के हाथ से ले लिए और खोलकर देखने लगी। मुराद खड़ा उनको मुस्कुराता हुआ देख रहा था। भाई आप बहुत अच्छे हैं, दोनों ने साथ में कहा।
चारपाई पर बैठ गया और करो, इनका दिमाग खराब, ना काम ना काज, सारा दिन मोबाइल में लगी रहती हैं। साजिदा बोली, अम्मा आपका बस चले तो सारा दिन हमसे काम करवाएं आप। सफ़िया ने कहा। शामीन जो अंदर कमरे में बैठा हुआ था एमन के साथ आवाज़ें सुनकर बाहर आया। क्या हुआ? शामीन ने पूछा। मुराद भाई हम दोनों के लिए नई मोबाइल लेकर आए हैं, आफिया ने बताया। एमन भी बाहर आ गई। ऐसा करो एक मोबाइल एमन को दे दो, मैं तुम्हें दूसरा ला दूंगा। शामीन ने आफिया से कहा। नहीं, मैं हरगिज़ अपना मोबाइल नहीं दूंगी। आफिया ने मोबाइल उठाया और कमरे में चली गई। सफ़िया तुम अपना मोबाइल एमन को दे दो, मैं तुम्हारे लिए दूसरा ले आऊँगा। शामीन ने अब सफ़िया से कहा। मैं नहीं दूंगी अपना मोबाइल, मैं जानती हूँ आप नहीं लाएंगे। सफ़िया ने कहा। कैसे नहीं दोगी? देखता हूँ। शामीर आगे बढ़ा और इसके हाथ से मोबाइल छीन गया। इधर दो मेरा मोबाइल, सफ़िया ने गुस्से से कहा और मोबाइल छीनने की कोशिश करने लगी। एमन दोनों को देखकर परेशान हो गई। आप इसे वापस कर दें, मुझे नहीं चाहिए मोबाइल, एमन ने परेशानी से कहा। वो जानती थी अब सारा जंजला इस पर गिरेगा। दोनों बहन भाइयों में हाथापाई शुरू हो गई। शामी ये क्या तरीका है? तुम्हें अपनी बीवी को मोबाइल देना है तो खुद शहर जाओ और लेकर आओ, मेरी बहनों का क्यों छीन रहे हो? मुराद ने कहा। लेकिन शामी में कुछ सुन ही नहीं रहा था। कल तक तो इसकी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते थे, तो आज इसकी फरमाइशें पूरी कर रहे हो। साजिदा को गुस्सा आ गया। अम्मा आप बीच में मत बोले, शामी ने कहा। इन दोनों को झगड़ा बहुत बढ़ गया। कुछ तो याद करो शामी, ये हमारे भाई की कातिल की बहन है और तुम इसके लिए मुझे मार रहे हो, मेरा मोबाइल छीनकर इसे दे रहे हो। सफ़िया रोने लगी। शामी ने एमन का हाथ पकड़ा और मोबाइल उठाकर कमरे की तरफ बढ़ने लगा। सफ़िया पीछे भागी और एमन को मारने लगी। सफ़िया तमीज़ से। मुराद ने कहा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी पर हाथ उठाने की? शामीर सफ़िया को मारने के लिए आगे बढ़ा तो मुराद ने इसे रोक लिया। बीवी पर तुम खुद ही भी कई बार हाथ उठा चुके हो। मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि मियाँ बीवी के आपस का मामला था, लेकिन मेरी बहन को अगर तुमने मारा तो मैं तुम्हारी हशर नशर कर दूंगा। मुराद ने इसका बाजू पहुँचते हुए कहा। बाढ़ में जाओ तुम सब, शामीर ने मोबाइल ज़मीन पर फेंकते हुए कहा। सफ़िया ने तेज़ी से मोबाइल उठाया और साफ़ करने लगी। शामीर एमन का हाथ पकड़कर अंदर कमरे में चला गया। तौबा तौबा, एक दिन में पता नहीं कौन सा तवीज़ घोल कर पिला दिया है मेरे बेटे को इस लड़की ने। कल तक तो इसकी शक्ल देखने का रवादार नहीं था और आज कुर्बान जा रहा है। साजिदा कहकर रोने लगी। मुराद सर पकड़कर वहाँ बैठ गया। ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे, इसने ज़ेरे लब कहा था। आपको इतना हंगामा नहीं करना चाहिए था। आपके जाने के बाद मुझे बातें सुननी पड़ेंगी, एमन ने परेशानगी से कहा। कोई कुछ कहकर तो दिखाए तो मैं ज़बान खींच लूँगा इसकी। शामी ने कहा। अब की अम्मी मुझे बातें सुनाएंगी, क्या इनकी ज़बान खींच सकते हैं आप? एमन रोने लगी। तुम रो मत, शामी ने इसके आंसू पोंछते हुए कहा। आप अगर सबसे मेरे लिए लड़ेंगे तो मेरे लिए परेशानी होगी। एमन बोली। अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे लिए जलेबी लेकर आता हूँ, शामी ने कहा और वहाँ से चला गया। वो टीले के पास आया जहाँ जलेबियाँ बन रही थी। इसने जलेबी वाले को जलेबी का कहा और पैसे पकड़ा दिए। थोड़ी सी दूर इसके तीनों दोस्त खड़े हुए थे जो इसे देखकर हंसने लगे। शामी इनको नज़रअंदाज करता हुआ जलेबियाँ लेके आगे बढ़ने लगा। वो देखो जो रुको गुलाम जा रहा है, कासिम ने आवाज़ लगाई और वज़ीर ने हाथ मिलाकर ताली बजाई। ज़रूर अपनी बीवी के लिए जलेबियाँ लेकर जा रहा है। हमद ने भी ऊंची आवाज़ में मजाक उड़ाया। शामी ने इनको गुस्से से देखा और उनको नज़रअंदाज करके घर की तरफ बढ़ने लगा। छोड़ दे इसे, अभी बीवी के हुस्न की पट्टी बंधी हुई है इसकी आंखों में, बहुत जल्द ये पट्टी उतर जाएगी और वापस हमारे पास ही आएगा। दुम हिलाता हुआ कासिम ने कहा। यार दीदार तो करा दे इसकी बीवी का, सुना है बहुत हसीन है, दिल बेताब है देखने को। हामिद दिल पर हाथ रख कर बोला। हाँ करते हैं कोई मनसूबाबंदी इसे देखने की, मैं खुद देखने को बेचैन हूँ। ज़रूर हसीन है तो शामिर मरा जा रहा है इसके लिए, वरना जिस काम से हम इसे मना करते हैं इसकी मजाल नहीं कि शामिर इसके ख़िलाफ़ कुछ करे, लेकिन देखेंगे कैसे, वज़ीर ने कहा। सोचते हैं कुछ, कासिम ने टोडी खुजाते हुए कहा। एमन शामी ने घर में दाखिल होते हुए आवाज़ लगाना शुरू की। एमन रात के खाने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठा कर रही थी। ये लो जलेबी, शामी ने इसे शापर थमाते हुए कहा। आप कमरे में रख दें, मैं अभी काम कर रही हूँ। एमन बोली। माँ को तो कभी कुछ लाकर नहीं दिया, कभी बहनों को भी कुछ नहीं दिया और इस लड़की पर मेहरबानियाँ हो रही हैं। साजिदा तब गई।
आपको शुगर है अम्मा, सोचना भी मत जलेबी के बारे में। शामिर ने हंसते हुए कहा, देख रही हूँ बड़ा हवाओं में उड़ रहा है आजकल। साजिदा ने तंज किया। शामिर वाकई हवाओं में उड़ रहा था। अमन की कुर्बत पाकर इसे अब अमन के सिवा कुछ नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन अमन शामिर के इस रवैये पर परेशान सी थी, क्योंकि इसकी मेहरबानियों का सिला इसी साजिदा के गुस्से की सूरत में सहना पड़ रहा था। खा लो, गरम गरम है, फिर मज़ा चला जाएगा, ठंडे हो गए तो। शामिर इसके पास बैठता हुआ बोला। वो खाने लगी। साजिदा को ये मंजर एक आंख नहीं बहा रहा था। कल तक तो बड़े दावे कर रहा था भाई के कातिल का बदला लेने का। कहाँ गया तुम्हारा भाई से प्यार? साजिदा बोली। अम्मा, कत्ल अम्मा ने नहीं किया और बदला तो मैं ज़रूर लूँगा, बस हैदर मेरे हाथ लग जाए किसी दिन। कसम खाता हूँ, वैसे ही डंडा इसके सर पर नहीं मारा तो मेरा नाम शामिर ने कहा। अमन परेशान हुई। क्या अब भी वो हैदर के कत्ल का इरादा रखता है? सौतेला ही सही, लेकिन इसका भाई तो था। शामिर घर से बाहर गया तो मौका पर अमन मुराद के पास आई। सुबह का वक्त था। मुराद चाय पीकर उठा। अमन सामने आई तो वो नज़रें झुकाकर आगे बढ़ने लगा। इसे इस रात वाली बात याद थी। वो भी इससे गुरेज ही रहता था। बात सुने, वो जाने लगा तो अमन ने पीछे से पुकारा। वो रुक गया और मुड़कर अमन को देखा। मैं इस रात के लिए आपसे माफ़ी चाहती हूँ। मुझे आपसे इस तरह का रवैया नहीं रखना चाहिए था। आपने मुझे शामिर की मार खाने से बचाया था। मैं इस बात के लिए आपके एहसानमंद हूँ, मगर इस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने परेशानी में आपसे वो सब कहा। अमन की बात मुकम्मल नहीं हुई थी। मुराद ने इसकी बात काटी। मुझे नहीं मालूम आपको क्या परेशानी थी, लेकिन इतना कहूँगा कि आपने अच्छा नहीं किया। मैं आपकी इज़्ज़त करता हूँ। इस घर में सिर्फ एक मैं ही हूँ जो आपकी इज़्ज़त करता हूँ, बाकी सबका हाल आप खुद जानती हैं। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि मैं आपकी इज़्ज़त करता हूँ और क़यामत तक करता रहूँगा। मुराद ने कहकर तेज़ी से वहाँ से निकल गया। अमन का दिल बोझ कर गया। इसे पछतावा हो रहा था। अमन अपने कमरे में थी जब साजिदा अंदर आई और इसने अमन को बालों से पकड़ लिया। मेरी बेटी पर जादू टोना करवाया है तूने? कल तक तो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता था और आज तुम्हारे पाँव दो दो कर पी रहा है। कौन सी पीर फकीर से लिए तवीज़, मुझे बताओ। साजिदा ने इसे मारना शुरू किया। चाची, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अमन रोते हुए कह रही थी। मैं तुझे एक बात बता दूँ कि शामिर का ये रवैया 2 दिन का मेहमान है। जैसे ही तुम्हारी मोहब्बत का भूत इसके सर से उतर गया, वो तुम्हें पूछेगा भी नहीं। वो मेरा बेटा है और मैं इससे जानती हूँ, इसलिए बेहतर है कि अपनी औकात में रहो। और तुम्हारी औकात है कि तुम वनी में आई हो। साजिदा ने कहा कर इसे के बाल छोड़ दिए। कमरे के दरवाजे से गुजरते हुए मुराद ने साजिदा का सिर्फ आखिरी जुमला सुना था, अल्लाह हिदायत दे। मुराद कहता हुआ सीढ़ियाँ चढ़ गया। अमन अब शामिर के कमरे में ही रहती थी। शामिर अब ज़्यादा वक्त घर में ही गुजारने लगा था। इसने दोस्तों के पास जाना भी फ़िलहाल तर्क कर दिया था। सारा दिन अमन के आगे पीछे घूमता रहता था। अपनी बहनों से कहता था कि अमन काम नहीं करेगी, वो काम करे, और इसी बात को लेकर रोज़ झगड़ा शुरू हो जाता था। इन सब बातों की वजह से अमन को परेशानी सहनी पड़ती थी। इस इंसान की नफ़रत भी मेरे लिए इतनी तकलीफ़दा नहीं थी जितनी इसकी मोहब्बत मुझे अज़ियत दे रही है। अमन ने खुद से कहा जा रही है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि हर आने वाली एपिसोड आप तक मिल सके। एंड प्लीज़ सपोर्ट। थैंक यू सो मच।